Hello viewers, the question is two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is E, that is electric field, part A in the outer region of the first plate and part B in the outer region of the second plate and part C between the plates. So to calculate the electric field in the region outside the plate A, that is the first plate. So we know the concept that the electric field due to a certain square plate, certain metal plate is given by the expression E is equal to sigma upon 2 epsilon naught n cap, where n cap denotes the unit vector and its direction is away from the positive plate and towards the negative plate. So we want to calculate the total electric field region outside the plate 1. So the electric field component due to the first plate, that is plate A, is given by E1 is equal to sigma upon 2 epsilon naught and its direction is away from the plate A. Similarly, the electric field component E2, which is due to the plate B in the outer region of plate 1, suppose it is E2, so E2 is given by sigma upon 2 epsilon naught and its direction is towards the plates, toward plate A. And since both the electric field are having the same magnitude, that is sigma upon 2 epsilon naught, so it cancels. So in this way, the net field outside the plate 1 is 0. Similarly, for plate 2, the electric field component due to plate A is away, that is suppose it is E1, and the electric field due to plate B is towards the plate, suppose it is E2, and since the magnitudes are same, sigma upon 2 epsilon naught, and the direction are opposite, it means that both of the components cancel each other. So the net field in this case, that is the electric field in the outer region of the plate B, is also 0. Now to calculate the electric field between the plates, so the field component due to the plate A is away from the plate A and its magnitude is given by sigma upon 2 epsilon naught, and the field component due to the plate B is towards the plate B, towards the negative charge plate, and its magnitude is also sigma upon 2 epsilon naught. So the direction is same, magnitude is same, and their sum becomes sigma upon epsilon naught. Now putting the respective value of sigma and epsilon naught here, so we get the net field in between the plate as 17 into 10 to the power 20 minus 22 upon 8.854 into 10 to the power minus 12. So after calculating this value comes out to be 1.92 into 10 raised to the power minus 10 Newton per coulomb. So this is the net field between the plates. This is the answer of the C part of the problem. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि दो बड़ी थिन मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के और काफ़ी नज़दीक रखी गई हैं. इनकी इनर सरफेसेस पे इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, अपोजिट साइन की है और उनके मैग्नीट्यूड है 17 न्यूटन पर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मीन्स प्लेट ए के आउटर रीजन में यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड में, और पार्ट बी में पूछा गया आउटर रीजन द सेकंड प्लेट यानी प्लेट बी के राइट हैंड साइड में, और पार्ट सी में पूछा गया बिटवीन द प्लेट्स. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप, किसी भी एक सिंगल प्लेट की वजह से अगर हम बात करें, और एन कैप डिनोट करता है यूनिट वेक्टर को और इसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो यहाँ पे अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, टोटल फील्ड निकालना चाहते हैं आउटसाइड द प्लेट ए, तो उस केस में रीजन 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें दो कंपोनेंट होंगे इसके. पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू द प्लेट ए, सपोज इसे हम कह रहे हैं E1, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम प्लेट ए एज वेल एज प्लेट बी, यानी इसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड्स होगी और इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसी तरह से प्लेट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा E2 जो कि बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नेट फील्ड जो होगा वो आउटसाइड द प्लेट ए यानी फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड जो होगा वो बराबर होगा 0 के.
ठीक इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं प्लेट बी के राइट हैंड साइड का रीजन, जो कि हम रीजन 3 शो कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा E1 जो कि होगा प्लेट ए की वजह से, यानी पॉजिटिव प्लेट की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट यानी कि राइट हैंड साइड में। इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से आउटसाइड द प्लेट बी यानी रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा भी कंपोनेंट होगा E2 जो कि प्लेट बी की वजह से होगा, और हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो E2 और E1 जो है अपोजिट साइन के होंगे और इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इस वजह से उनका जो नेट सम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो पार्ट बी का आंसर भी यहाँ पे जीरो रहेगा। उसके बाद हमें रीजन 2 में यानी कि प्लेट ए और बी के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोनों ही कंपोनेंट्स की टुवर्ड्स राइट होगी, क्योंकि प्लेट ए की वजह से, ये जो कि पॉजिटिवली प्लेट है, अवे फ्रॉम द प्लेट यानी राइट हैंड साइड में हो रही है, और प्लेट बी की वजह से जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द प्लेट होगी। तो इस वजह से दोनों ही फील्ड की जो कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड में होंगी, तो दोनों कंपोनेंट्स जो एडअप हो जाएंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज रेस्पेक्टिवली पुट करेंगे हम यहाँ पे, सिग्मा की 17 इंटू 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻12। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। So this is the answer of the third part of this problem. Hope you understand the explanation. Thank you.